Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic from the political science paper 2 syllabus, and it is also the part of constitutional law. So that is why it is highly important, because you are preparing two papers at the same time. You are preparing political science paper 2, and you are also preparing constitutional law. So you guys are lucky in this sense that you have opted the paper or the papers which overlap each other 100% completely, and the preparation of one paper helps in the preparation of another paper. So before this we talked about our in our previous classes we talked about the constitution of UK. We talked about the the salient features of the constitution of UK. Then we talked about the sovereignty of the parliament. We talked about House of Commons, House of Representatives, Prime Minister. We talk about the monarch. We talk about the self-local government. We talk about the cabinet system. We talked about the rule of law, judiciary, and how the bills are passed and amendments are carried out in the parliament. And we also talked about the legislative procedures and so on and so forth. So in today's class we are going to talk about another important constitution. Why is it important? It is important because it is the constitution of the USA, United States of America, the state which is the superpower of the world, right? The strongest economy, and also the one of the strongest states militarily, right? No country can match its military power. Similarly, politically it is so strong that no country can match its political stability, right? Its system is matchless. It is a model system for the rest of the countries. So that is why I must say that you guys are lucky studying the constitution of USA. Moreover, the constitution of Pakistan is based on the constitution of UK and the constitution of USA at the same time. So Pakistani constitution has borrowed a lot of things from the constitution of UK and from the constitution of USA, and that is why you must assimilate the point that understanding the constitution of UK and understanding the constitution of USA will help you in understanding the constitution of your own country. That is the beauty of these two constitutions, right? Another thing, why is it important? From the CSS papers point of view, it's highly significant, important. You might not find a single paper not discussing USA, whether it is political science paper or constitutional law. There will be question or questions from this very constitution. Remember this point. Moreover, you will not find Pakistan affairs paper discussing the Pakistan's relation with America, or the American impacts or American policies impacts on Pakistan. In current affairs,
you might not find a paper not discussing the America. So with this respect, understanding the constitution, the system, the machinery of their government is highly significant, because without studying the constitution of UK, you will not understand America, its policies, its system, the powers of the president, the powers of the Congress, the checks and balance system, the political system over there, and their policies and the impacts of their policies over the whole world. This is going to be a highly interesting class. So without discussing much importance, I'm going to start from the general features. Why I'm going to start from the general features? Let me clarify the statement as well. To understand the constitution of any state, whether it is Pakistan, India, France, China, Russia, America, UK, Germany, Turkey, whatever is that, you must understand the salient features of the constitution. And once you understand the salient features of a particular constitution, then you understand the whole system, how it runs, whether it is parliamentary or presidential, whether it has two-party system, one-party system, or it has multiple parties, right, in the country. So then you understand the power of judiciary, whether judiciary is independent or not. If it is independent, what are its characteristics? And if it is subordinate, so then what are its characteristics, right? So understanding whether it is presidential system or semi-presidential system, or it is a system of Russia like communism. Take the example of China, one party, communist party, dominates each and everything, right? So what kind of system is this? So then salient features of the constitution explains all these things to you before studying a particular constitution. What I mean to say that understanding the salient features of the constitution helps you in understanding the rest of the lectures, the rest of the tough and difficult topics of each and every constitution. So that is why we are going to start from the salient features or general features of the Constitution of America. So let's begin with the concept that, and as we are studying the first part of the paper political science, right, the first part will carry comparative analysis of the constitutions. Like there will be a question with a comparison or contrast between two states like America and UK. You might get the question कुछ इस तरह होता है इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट में क्या कंपैरिजन और कंट्रास्ट है, कौन सी चीज़ सिमिलर है और कौन सी चीज़ जो है डिफरेंट है। या आपको ये बताया जाता है कि जो कांग्रेस है अमेरिका का और जो पार्लियामेंट है यूके का, दोनों में जो है क्या मुमासिलत है, क्या फ़र्क है। तो इस वजह से हम जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हम इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो है, आज मुझे आप लोगों के मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट है, ये क्या है, फरहानदा ज़ेब, यस फरहानदा ज़ेब, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आपने हुमा खान को भी मेंशन किया, मामूना मंजूर को भी किया,
और आपने लेक्चर को शेयर भी किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कोऑपरेशन। और ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ही जो है अपना जो मकाम है, चाहे CSS है, PMS है, या इसके अलावा भी जो भी मकाम है, कामयाबी इस जैसे रिस्पॉन्सिबल लोगों को मिलती है, जिसके दिल में जो है एक दर्द होता है अपनी ज़ात के लिए भी, कि मैंने कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, और फिर दूसरों को भी एज ए लीडर जो है, हम इसको लीडरशिप क्वालिटीज़ कहते हैं, दूसरों को भी अपने साथ मिलाते हैं कि उसको पुश करता है। तो अगर आप जैसा बंदा जो है, या जैसी बंदी कहूँगा, CSP बन जाए तो एक डिपार्टमेंट के लिए ये एक असासा होता है, क्योंकि ये अपनी ज़ात के साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट को पुश करता रहता है। उसके नीचे जितना भी अमला होता है उसको पुश करने की सलाहियत रखता है। एनी हाउ, बहुत कम स्टूडेंट्स जो है इन बातों को समझते हैं, और कुछ में ये नेचुरल होता है, इनबान होता है, ना कोई उसको कहता है कि आप ये काम करें, वो नेचुरल होता है। ठीक है, तो I can see that quality in you and I hope that you will keep it on। और आप में ये क्वालिटीज़ हमेशा रहेंगी जब तक आप CSP ना बने, और CSP बन जाएं तो फिर पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएं। अच्छा, तो पहला करेक्टरिस्टिक हम ले लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है रिटन कैरेक्टर, कि USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन। अब हम इस पॉइंट को कंपेयर करते हैं UK के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो UK कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ अनडॉक्यूमेंटेड, अनरिटन, वो अनरिटन है। ये क्या है? रिटन है। रिटन से मुराद ये है कि इसका एक छोटा सा किताब जो है, या बुकलेट जो है, किताबचा जो है, वो आपको अवेलेबल है, मिल सकता है। इसमें 7 आर्टिकल्स हैं, और आज तक जो है उसमें आप लोगों की किताब में 26 अमेंडमेंट्स लिखे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा फिगर है वो है 27 अमेंडमेंट्स। फर्स्ट बेनिफिट, नहीं बेनिफिट ना लिखे, ट्रेट लिखे या कैरेक्टरिस्टिक लिखे, ठीक है। बेनिफिट लफ्ज़ ठीक नहीं है, तो रिटन कैरेक्टर लिख ले, ठीक है। अच्छा, उसमें तकरीबन 7 आर्टिकल्स हैं, और 7 आर्टिकल्स का मतलब ये कि इसका जो छोटा सा बुक है 7000 अल्फाज से बड़ा नहीं है, ठीक है। और उसमें आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ 26 अमेंडमेंट्स हुए हैं, सिर्फ 26 अमेंडमेंट्स हुए हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कन्वेंशंस एंड यूजेजेस। कन्वेंशंस एंड यूजेजेस, जैसे कन्वेंशंस ने हेल्प किया UK के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसी तरह कन्वेंशंस ने हेल्प किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। उसमें कस्टम्स आ जाते हैं, लोगों का कल्चर आ जाता है, जो रिवायात हम इसको कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल दूंगा, आप लोगों की किताब में भी लिखा है कि कन्वेंशन के लिहाज, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात यह कि एक कानूनी बात होती है, कन्वेंशन यह है कि लोगों ने बनाई हो, कानूनी नहीं है, लेकिन वो इतना फोर्स रखता है कि कानून जो है बन जाता है। अब मैं मिसाल दूंगा। मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन में फ़र्क क्या है ये भी सुन ले। एक है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट मतलब ये है कि हम नुमाइंदों को वोट देते हैं और ये नुमाइंदे फिर पार्लियामेंट जाकर सदर को वोट देते हैं, जैसे पाकिस्तान में ये सिस्टम है, इनडायरेक्ट है। हम एमएनएज बनाते हैं और फिर यही एमएनएज और एमपीएज जाकर
सदर पाकिस्तान को बनाते हैं और उसको वोट देते हैं। मैं और आप सदर पाकिस्तान को वोट डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनली सदर के लिए है कि प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आएगा। लोग जो है नुमाइंदों को वोट देंगे और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, हम इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा फिर वो सदर को वोट करेंगे, ठीक है। लेकिन कन्वेंशंस में क्या हुआ, ये तो आईनी बात मैंने कह दी अमेरिका के लिए। कन्वेंशंस में ये है कि अब इट इज मोर डायरेक्ट, ये अब डायरेक्ट बन चुका है। अभी हालिया आप लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का इलेक्शन था, ठीक है। अब लोग नुमाइंदे इन लोगों ने खड़े कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए इलेक्टोरेट, और इसी तरह जो है जो बाइडेन ने अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए। लोग जो वोट देते हैं बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इलेक्टोरेट को वोट देता है, या जो नॉमिनेटेड बंदा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने या जो बाइडेन ने खड़ा किया है या उनकी पार्टियों ने खड़ा किया है, लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जहन में ये नहीं होता कि ये फलां शख्स खड़ा है, बस जैसे देख लिया कि ट्रंप का बंदा है, ट्रंप को वोट देना है, बस उसको वोट देना है। वो ये नहीं देखता कि ये शख्स कौन है, बस इसको सिर्फ ये मकसद है कि मेरा वोट ट्रंप को जाएगा, मेरा वोट जो बाइडेन को जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इनडायरेक्ट लगता है लेकिन है डायरेक्ट, क्योंकि जब एक शख्स वोट डालता है वो इलेक्टोरेट को नहीं देखता या इलेक्टोरल कॉलेज का जो मेंबर होता है उसको नहीं देखता, बल्कि वो उसके जहन में सदर होता है जिसने इसको खड़ा किया होता है, जैसे जो बाइडेन। अब वो जीत भी चुका है, ठीक है। खैर है, जो इलेक्शन सिस्टम है वो आगे चलकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मज़ीद डिटेल के साथ। आज हमारा टॉपिक इलेक्शन सिस्टम नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज या प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होता है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को कन्वेंशन की मिसाल समझा रहा हूँ कि अमेरिकन सदर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, लेकिन कन्वेंशन ये बताती है, कन्वेंशन में ये बात आज तक जो है डेवलप हुई, अब इट इज़ मोर लाइक डायरेक्ट। दूसरा कन्वेंशन भी बताता हूँ। कन्वेंशन ये है कि सदर ने कहा, जॉर्ज वाशिंगटन जो फर्स्ट सदर था अमेरिका का, उसने कहा कि एक सदर 2 टर्म से ज्यादा नहीं बैठ सकता। अब ये कन्वेंशन बन गया, इसको आइन में शामिल नहीं किया गया था उस वक़्त, ये बस एक कन्वेंशन बन गया। बस जितने भी सदर आए सारों ने जो है सिर्फ 2 टर्म पूरे किए, सिवाय एक शख्स के जो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उसका नाम है, और उसने 3rd टर्म भी लिया और 4th टर्म भी लिया। लेकिन उसके बाद जो है 1940s के बाद जो है इसमें अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट के ज़रिए अब ये आईनी बात है कि एक शख्स अमेरिका में 2 दफ़ा से ज़्यादा सदर नहीं बन सकता। अच्छा, ये तो करेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है रिजिडिटी, कि जो अमेरिका का आइन है दैट इज़ हाईली रिजिड। अब सवाल ये है कि रिजिड क्यों, सही, और दूसरा सवाल ये है कि रिजिड है तो फिर दुनिया में ऐसे आइन भी होंगे जो फ्लेक्सिबल होंगे, उसके अपोजिट भी हो सकते हैं। जी हाँ, यूके का आइन वो फ्लेक्सिबल है, अमेरिका का आइन दैट इज रिजिड। अब सवाल ये है कि रिजिडिटी क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इससे मुराद क्या है। रिजिडिटी जो है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है विच डज नॉट अलाउ अमेंडमेंट इजीली, जिसमें अमेंडमेंट इजीली नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी जिस आइन में होती है, या फ्लेक्सिबल आइन वो आइन होता है जिसमें चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स आसानी से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट ऑफ यूके ले ले, सो दैट इज मोर फ्लेक्सिबल, बस पार्लियामेंट जो चाहे कर सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो सकती है। इनका जो आइन है वो आसानी से चेंज नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों को बता दूं
कि पाकिस्तान में 1973 में आइन बना। 1973 के आइन के बाद मोर देन 25 जो है अमेंडमेंट्स हुए। मतलब ये 1973 के बाद कितने साल बनते हैं? तकरीबन 50 साल हो गए। तो इन 50 सालों में तकरीबन, ठीक है आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्टली फिगर आप लोग खुद देख लें, तो इन चंद सालों में 50 सालों में हमने 25 के करीब जो है अमेंडमेंट्स कर लिए। अमेरिका का आइन बना 200 साल पहले और 200 सालों में सिर्फ और सिर्फ 26 अमेंडमेंट्स हुए। अभी जो है आप लोगों की किताब में भी 26 लिखा है, लेकिन 27 अमेंडमेंट भी हुआ है। तो अगर आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो करंट फिगर लिखे 27 अमेंडमेंट। तो 200 सालों में सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका के आइन में अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से इसको कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके बाद है फेडरल कैरेक्टर। फेडरल कैरेक्टर का मतलब ये है कि अमेरिका का जो आइन है दैट इज फेडरल इन नेचर। इसमें सेंटर भी होता है और इसमें स्टेट्स भी होते हैं। सेंटर के पास अपने इख्तियारात होते हैं और स्टेट्स के पास अपने इख्तियारात होते हैं। क्या क्या इख्तियारात सेंटर के पास हैं, क्या क्या स्टेट के पास है, इसको हम बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप जो है फेडरल की मीनिंग समझिए। फेडरल जो है वो आइन होता है जिसमें सेंटर के पास भी इख्तियारात होते हैं, आज़ादाना इख्तियारात, अटानमस, और इसी तरह स्टेट भी जो है अटानमस इख्तियारात रखते हैं। जैसे पाकिस्तान को ले लें, 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के सूबे भी जो है अटानमस हो गए। अब ये जो है ये भी अपने इख्तियारात रखते हैं और सेंटर जो वफाकी हुकूमत है उसके पास अपने इख्तियारात होते हैं। फेडरेशन है, इसको फेडरेशन भी कहा जाता है। अच्छा, 5वां पॉइंट जो है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अमेरिका में भी सबसे ऊंचे दर्जे का जो लॉ है, सुप्रीम लॉ है, जिसके अबव कोई भी नहीं है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बराए नाम है। चाइना ले लें, रशिया ले लें, दैट इज ओनली नॉमिनल। ठीक है, बराए नाम सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होगी। अदरवाइज जो कम्युनिस्ट पार्टी है जब चाहे इसको चेंज कर ले, लेकिन यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी बात नहीं है कि एक शख्स कानून से ऊपर हो। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये 6th पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स पर अलग लेक्चर दूंगा आप लोगों को कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, क्या होता है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर डिटेल के साथ, और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी आ सकता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स असल में जो पावर्स हैं हमारे पास स्टेट के या गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। हम उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी जो हमें दी है, मोंटेस्क्यू ने दी है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मीना गुलाले इन 74 ईयर्स, ये आप क्या कह रही है मीना गुलाले? मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो रही है, तो तीनों के दरमियान जो पावर्स हैं वो सेपरेट होते हैं। जुडिशरी के अपने इख्तियारात होते हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने होते हैं, और लेजिस्लेचर के अपने होते हैं। जैसे लेजिस्लेचर जो है वो फिर तीनों इंडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे से आज़ाद भी होते हैं, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। कुछ ममालिक में या कुछ स्टेट्स में ऐसा है जहाँ पर ये जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती। इवन यूके में भी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वहाँ पर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट है,
लेकिन आईनी तौर पर इंडिपेंडेंस या सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थीरी है वहाँ पर अप्लाई नहीं होती। एनी हाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स की थीरी पर हम डिटेल बात करेंगे फिर बाद में। सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए जो मैं आप लोगों को एक फ़िलासफ़ी बताता हूँ, बुक में नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, वो ये है कि पावर्स क्यों सेपरेट होने चाहिए। पावर्स मस्ट बी सेपरेटेड इन ऑर्डर दैट वन बॉडी शुड नॉट मिसयूज द पावर। ठीक है कि एक बॉडी जो है, जैसे लेजिस्लेचर ले ले या जो सदर साहब ले ले, प्रेसिडेंट ले ले या एक मुनार्क ले ले, या एक शख्स के पास तमाम के तमाम पावर्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज ही कैन मिसयूज इट, वो इसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो मिसयूज ऑफ पावर जो है, इसको ख़त्म करने के लिए पावर जो है सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि चलो आपने पावर्स अलग कर दिए, जुडिशरी को अपने पावर्स दे दिए, लेजिस्लेचर को अपने पावर्स दे दिए, सदर को अपने पावर्स दे, तो जुडिशरी तो कम से कम अपने इख्तियारात को तो गलत इस्तेमाल कर सकती है। लेजिस्लेचर कानून साजी करता है तो वो कम से कम अपने जो इख्तियारात है उसमें तो मिसयूज़ कर सकता है, या सदर जो है एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें अपना इख्तियार जो है गलत इस्तेमाल तो कर सकता है। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, इसके लिए जो मौजू कंसेप्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन मॉन्टेस्क्यू ने भी सजेस्ट किया था कि ये भी सच है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज़ नॉट पॉसिबल। कंप्लीट इंडिपेंडेंस पॉसिबल नहीं है। अगर अदलिया भी मुकम्मल आज़ाद हो जाए, लेजिस्लेचर भी मुकम्मल आज़ाद हो जाए, और तीसरा जो है ये एग्जीक्यूटिव भी मुकम्मल आज़ाद हो जाए, तो फिर तीनों जो है एक दूसरे की बात ही नहीं मानेंगे। हर एक शख्स कहेगा कि मैं आपसे बेहतर हूँ, या कम से कम मैं आपके बराबर हूँ, तो आपकी बात क्यों मानूं? तो फिर टसल्स, डिस्प्यूट्स, डेडलॉक्स ये बीच में आएंगे। इसका हल क्या होगा? इसका हल हमें चेक्स एंड बैलेंसेस में मिलता है कि तीनों ऑर्गन्स जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखे। मिसाल के तौर पर जो कानून लेजिस्लेचर बनाता है, आईन बनाता है या कानून बनाता है, लॉ बनाता है, तो फिर सदर के पास पहुंचता है, और सदर के पास चेक क्या है? सदर इसको वीटो कर सकता है, इसको ख़त्म कर सकता है। तो जो कांग्रेस है वो कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि वो सदर को एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, तो मतलब कांग्रेस पर सदर की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक चेक आ गया। अब सदर जो है फॉरेन ट्रीटीज करता है, दूसरे ममालिक के साथ मुआहिदे करता रहता है, बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स करता है, आर्मी के चीफ तक वो जो है अपॉइंट करता है, जजेस को अपॉइंट करता है। तो अब अगर ये सारे अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से करे तो ये तो सारे इसके लोग आ जाएंगे, पूरा निज़ाम तो ये हाईजेक कर लेगा। तो फिर इसका चेक क्या है? सेनेट की तरफ से। जो कांग्रेस का जो सेनेट होता है, अपर हाउस होता है, वो कहता है कि ठीक है, सदर के पास अपॉइंटमेंट के इख्तियारात हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट। सदर बाहर मुल्क जा सकता है, ट्रीटीज कर सकता है, फॉरेन अफेयर्स उसके हाथ में है, बट विद द असेंट एंड अप्रूवल ऑफ सेनेट। सेनेट जो है उसके साथ ज़रूर काम करेगा। तो सदर जो है कांग्रेस की तरफ से जो है उस पर एक चेक रखा हुआ है। सदर सब कुछ नहीं कर सकता, सेनेट भी उसके पीछे लगा हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सेनेट के अप्रूवल से होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो कांग्रेस और सदर की बात हो गई या एग्जीक्यूटिव की बात आ गई। अब आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी पर चेक कहाँ से है? जुडिशरी पर एक चेक सदर की तरफ से है, मतलब एग्जीक्यूटिव की तरफ से। एग्जीक्यूटिव की तरफ से ऐसा है कि वो जज वगैरह वो अपॉइंट करता है। ठीक, दूसरा चेक जो है लेजिस्लेचर की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि कांग्रेस जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ कांग्रेस बनाता है। तनख्वाहें जो होती हैं, सैलरीज जो होती हैं, जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो फिर कांग्रेस से
बनता है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जुडिशरी पर भी एक चेक रखा हुआ है। फिर जुडिशरी का चेक क्या है कांग्रेस और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर, वो ये है कि जुडिशरी इन दोनों के बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। कानून जब बनता है कांग्रेस से बनता है, सदर के पास पहुंचता है, सदर अप्रूवल देता है, फिर जुडिशरी के पास आता है ताकि जुडिशरी देखे कि ये कानून आइन के खिलाफ तो नहीं है, और अगर है तो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है जुडिशरी के पास। तो इसको हम, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। एनी हाउ, चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है, इस पर हम बाद में भी लेक्चर देंगे डिटेल के साथ। आर चेक्स एंड बैलेंसेस ओनली अलाउ इन यूएस सिस्टम, और कंट्रीज में भी हो सकती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने एग्जांपल यूएस का देना है, ये याद रखें, क्योंकि ये यहाँ से इनिशिएट हुआ है, यहाँ से जो है शुरू हुआ है। जुडिशियल रिव्यू पर भी जब कभी क्वेश्चन आता है तो वो भी जो है आपने एग्जांपल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का देना है, ठीक है। वो खैर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जब ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब आते हैं बिल ऑफ राइट्स की तरफ, ये 8वां पॉइंट है। बिल ऑफ राइट्स असल में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंसानों के, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी टू लिव अ लाइफ, ठीक है, ये बिजनेस और ये सारे जो जिसके वो बुनियादी हकूक जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। सांस लेना आपका एक बुनियादी हक है, इसके बगैर तो आप नहीं रह सकते। फ्रीडम ऑफ थॉट हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, ये सब बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये भी जो है अमेरिका के आईन में शामिल है, और फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो इसी के हवाले से हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी मिले, आज़ादी मिले, और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, वो इनको मिले। तो ये भी इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ हाईली रिजिड, वो तो रिजिड है, सख्त है, उसमें अमेंडमेंट आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन अभी साथ में ये भी बताता हूँ कि फर्स्ट 10 अमेंडमेंट तकरीबन 7 ईयर्स में हुए हैं। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स 200 सालों में सिर्फ और सिर्फ 27, लेकिन फर्स्ट 10th अमेंडमेंट ये 7 सालों में हुए हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि अगरचे ये बात सही है कि अमेरिका का जो आईन है वो अमेंडमेंट उसमें नहीं हो सकता, सख्त है, उसके बावजूद भी जब जब ज़रूरत पड़ी इन लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की और जल्दी से वो कानून बनाया और लोगों को बताया भी और उनको अपने हकूक भी दे दिए। इतना इनह्यूमन भी नहीं है या जालिम लोग भी नहीं है कि ज़रूरत हो अमेंडमेंट की और ये लोग अमेंडमेंट ना करें। अच्छा, ये भी इसकी खूबसूरती है। लेकिन बेजा अमेंडमेंट्स कि बस मुशर्रफ बैठ गया और उसकी मर्ज़ी से आइन बना, ज़िया बैठ गया और उसकी मर्ज़ी से आइन बना, याकूब आया, अयूब खान आया और उसकी मर्ज़ी से जो है आइन जो है चेंज हुआ और बना, और फिर नवाज शरीफ आया, उसने चेंजेस कर लिए। अब इमरान खान जो है 18वीं तरमीम के पीछे लगा हुआ है, NFC अवार्ड और इन सारी चीज़ों की पीछे। अगर ये सब देखा जाए तो ये एक शख्स के हाथ में तो नहीं होना चाहिए कि बस वो बैठ गया और कहा कि बस आइन तो कागज़ का एक टुकड़ा है, मैं जब चाहूँ इसको फेंक दूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मुल्क में। एंड आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि दिस इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जब सुप्रीम लॉ है, नो वन इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ही ये है कि वो गवर्नमेंट के जितने भी आर्गन्स हैं उसको चिक में रखे ताकि वो अपने इख्तियारात का मिसयूज़ ना करें। जैसे सदर हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे वज़रा होते हैं, कैबिनेट वगैरह, ताकि ये लोग अपने पावर्स का जो है मिसयूज़ ना करें। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू, ये 9th पॉइंट है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू ये है कि जब कभी कानून साजी होती है
कांग्रेस की तरफ से, सदर उसको अप्रूवल देता है, फिर वही कानून आता है इंटरप्रिटेशन के लिए या देखने के लिए कि ये आईन के मुतसादिम तो नहीं है। तो अगर है तो फिर अदलिया जुडिशरी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायरीज या जो है इनवैलिड डिक्लेयर करती हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज जस्ट लाइक अ गार्डियन, वो एक गार्डियन, एक प्रोटेक्टर की तरह है। वो आईन का मुहाफिज है, आईन को बचाता है ताकि उसका भी मिसयूज ना हो। और ये जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, इस पर अलग लेक्चर दूंगा डिटेल के साथ। तो अभी छोटा सा जो डिफिनीशन है, कंसेप्ट है, वो जान ले। डिवीजन ऑफ पावर्स, 10th, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है और एक डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। सेपरेशन ऑफ पावर तो बता दिया कि वो क्या चीज़ है। एक है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स जो है उन ममालिक या उन स्टेट्स में होता है जो फेडरल होते हैं, और अमेरिका भी एक फेडरेशन है, उसमें सेंटर भी है और उसमें स्टेट्स भी हैं। तो स्टेट्स के अपने इख्तियारात होते हैं और सेंटर के अपने इख्तियारात होते हैं, और इन दोनों के इख्तियारात में डिवीजन हुआ होता है। अब पाकिस्तान की मिसाल दे दूं, विफाक के अपने इख्तियारात हैं, सूबों के अपने इख्तियारात हैं, और ये एक डिवीजन के तहत होता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। तो इसमें आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स में कंफ्यूज नहीं होना। सेपरेशन ऑफ पावर्स is the separation of powers between the three organs of a government। वो गवर्नमेंट के दरमियान सेपरेशन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। डिवीजन कहाँ पर होता है? डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द कंस्टिट्यूएंट्स, असम्बलीज, या आप इसको यूनिट्स कह ले, स्टेट्स कह ले। ठीक, अच्छा, पॉपुलर सॉवरेनिटी 11 पॉइंट, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि तमाम की तमाम अल्टीमेट अथॉरिटी, इस मुल्क की तमाम सॉवरेनिटी किसके पास है? दैट लाइज विद द पीपल, वो लोगों के पास है। अमेरिका में सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी लोगों के पास है। पाकिस्तान में किसके पास है? सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, के तमाम की तमाम खुद मुख्तारी, कानून की जो सॉवरेनिटी है, आइन की जो सॉवरेनिटी है, पूरे स्टेट की जो सॉवरेनिटी है, दैट बिलोंग्स टू अल्लाह, वो गॉड के पास है, खुदा के पास है। ठीक है, अमेरिका में दैट लाइज विद द पीपल। और अगर हम बरतानिया को ले लें, यूके का आइन, वहाँ पर कहते हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास सॉवरेनिटी है। तो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट मुख्तलिफ हो सकता है, लोगों के पास भी हो सकता है, खुदा के पास भी हो सकता है, पार्लियामेंट के पास भी हो सकता है, इवन और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी कभार एक शख्स के पास भी सॉवरेनिटी हो सकती है। मुनार्क के पास जैसे पहले एक बादशाह होता था और उस बादशाह के पास तमाम के तमाम इख्तियारात होते थे। अच्छा, इसके बाद है रिपब्लिकनिज्म। बस पॉपुलर सॉवरेनिटी और रिपब्लिकनिज्म जो है तकरीबन दोनों सेम चीज़ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ से इतना पावर लेती है, सो दैट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये 13th पॉइंट है। यूके में तो बता दिया पार्लियामेंट के पास है। फरहान ज़ेब थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुने। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पावर्स लाई विद द कैबिनेट, इन द कैबिनेट पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तमाम के तमाम इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास। इसी तरह यूके का भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर तमाम के तमाम इख्तियारात जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। यहाँ पर जो है तमाम के तमाम इख्तियारात, पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट 4 साल के लिए आता है, 2 दफ़ा इलेक्ट भी हो सकता है, और इतना पावरफुल बंदा होता है कि जब एक दफ़ा उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, फिर कोई माइकलाल जो है उसको
हटा नहीं सकता, इवन कांग्रेस भी जो है उसको हटा नहीं सकता, वो फिक्स्ड टेन्यूर के लिए आता है। पाकिस्तानी आइन की तरह नहीं है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है 2-2 साल और 3-3 साल जो है उसके बाद उसका तख्ता उलट दिया गया एंड उसको ख़त्म कर दिया गया। ये 4 साल के लिए आएगा और अपना टर्म जो है पूरा करेगा। अच्छा, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, ये एक अहम क्वेश्चन है। हम इस पर मज़ीद बातें जब प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ाऊँगा कि उसके पास जुडिशरी के क्या इख्तियारात हैं, लेजिस्लेचर के क्या लेजिस्लेटिव क्या पावर्स हैं, और उसके पास जो है एग्जीक्यूटिव क्या पावर्स हैं, वो आप लोग जब समझेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका का जो सदर होता है, प्रेसिडेंट होता है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर पावरफुल शख्स है इस वक्त तो जो बाइडन है, जो अमेरिका का सदर है। तो जो शख्स अमेरिका का सदर होता है वो जो है सबसे पावरफुल बंदा होता है पूरी दुनिया में। क्यों? वो फिर जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पढ़ाऊँगा उसको जो है वहाँ पर आप उसके पावर्स देख लें, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इससे कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता। अच्छा, डुअल सिटीजनशिप, ये 14 पॉइंट है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आपके पास 2 सिटीजनशिप आ जाती हैं। एक स्टेट आपको, जिस स्टेट से आपका ताल्लुक है वो आपको सिटीजनशिप देती है, और दूसरा जो है आपको सिटीजनशिप मिलती है अमेरिका की जो सेंटर, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी। सो देन यू हैव डुअल सिटीजनशिप, इसको कहते हैं सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए एंड सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। अच्छा, स्पॉइल्स सिस्टम, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, ये आप लिखे भी एमसीक्यूज़ में भी शायद आ जाए कि स्पॉइल सिस्टम क्या है, या आपको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दे रहे और आपको कहें कि ये कौन सा सिस्टम है या किस आइन में है, स्पॉइल सिस्टम किस आइन में है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पाकिस्तान में, तो आप लोगों को फिर याद होना चाहिए। अच्छा, स्पॉइल्स सिस्टम है क्या चीज़, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद फिर क्लास को भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। स्पॉइल्स सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जब एक नया सदर बनता है वो अपने लिए चंद लोगों को मुंतखब करता है। अब ये चंद लोग कौन होते हैं, जिसको हम काबीना कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम उसको कहेंगे काबीना। तो ये भी अपने लिए काबीना बनाते हैं, कैबिनेट नाम अगर दे रहे तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो सदर साहब अपने लिए अपना काबीना तैयार करता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर काबीना तैयार करता है, मिनिस्टर्स बनाता है, तो वो तो अपनी पार्टी से लेता है या किसी और पार्टी से, लेकिन वो किसी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन सदर के पास, अमेरिका के सदर के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बंदे ले ले, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से हो, जिस जगह से भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सियासी बंदा हो। वो एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी उठा सकता है और उसको अपने मुल्क का जो है एक ओहदा, बड़ा ओहदा दे सकता है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो गया। वो किसी पार्टी का कोई मेंबर जो है जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही ना लिया हो, लेकिन पार्टी के साथ उसकी जो है थोड़ी सी रिलेशंस हो, उसको भी, ये अपने किसी दोस्त को भी ले सकता है, ठीक है। तो ये जो है इस सिस्टम को हम कहते हैं स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम, स्पॉइल तो आप लोगों को पता है कि जैसे लोग जंग करते हैं और जो सामान या जो चीज़ रह जाती हैं, गनीमत, शुमारी गनीमत आई थिंक उसको उर्दू में कहते हैं। तो जो शख्स जिस बस उठा ले जी, ये आपका माल है, आप ये आपका माल है। तो स्पॉइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है अमेरिका में कि जब नए इलेक्शन होते हैं, सदर साहब आता है, वो अपने लिए नया जो है मीना गोला, डजंट इट लीड टू फेवरेट, बिल्कुल ये नेपोटिज्म कह ले, फेवरेटिज्म कह ले, आप इसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम कह ले कि इसमें तो या मेरिट की क्या है, मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है, जो भी आप कह ले, है तो यही है।
इस पर एतराज़ होता है कि स्पॉइल सिस्टम जो है ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। ये तो डिक्टेटरशिप है सदर की कि बस जिसको भी चाहे अपने काबीना में शामिल कर लिया। लेकिन अब ये सिस्टम जो है ये उसकी खूबसूरती बन चुकी है और उसके जो सदर की जो पावर है उसकी पावर को और भी उसमें इजाफा करती है स्पॉइल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो बंदे उठाता है वो किसी को जवाबदेह नहीं है, न जुडिशरी को जवाबदेह है न कांग्रेस को जवाबदेह है, वो सिर्फ और सिर्फ सदर को जवाबदेह है। और सदर उसके साथ बैठकर फैसले भी करता है, उसमें अमूमन एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है, उसके साथ फैसले भी करता है, पॉलिसीज भी बनाता है और फाइनल डिसीजन भी फिर सदर की होती है। चलो ये एक सदर जब पढ़ाऊँगा डिटेल के साथ आप लोगों को बिल्कुल अमेरिकन सदर से प्यार भी हो जाएगा, मोहब्बत भी हो जाएगी कि काश हम भी अमेरिका का जो है सदर बन जाए, हम भी बन जाएं, काश हमें भी इतना पावर मिले। ये CSS वाले ओहदे थोड़े छोटे भी लगेंगे आप लोगों को, एनी हाउ फिर भी जो है ये जो सिस्टम है ये अमेरिका में है ही ऐसा। अच्छा, ये जो है बस ये 15 पॉइंट्स हैं, यही इसके सेलियंट फीचर्स हैं। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मीना गुलाले खातून हुआ अच्छा, कोई क्वेश्चन है? इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क about these 15 points. If not, then that's enough. Have a nice time, enjoy yourselves. चलो आप लोगों को 2-3 मिनट देता हूँ, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर लें इन्हीं से रिलेटेड। नहीं है कुछ, कोई भी क्वेश्चन नहीं है या मुझे नज़र नहीं आ रहा? नहीं, बस नज़र ही नहीं आ रहा। चलो, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, सी यू in my upcoming class.